Now understand, in the naive Bayes algorithm, we use basic Bayes theorem. For the basic Bayes theorem, we have been towards but for the basic Bayes theorem, we have our property. Okay. We have learned from this particular page what really the Bayes theorem is. Here in this way, we understand what is this, what this particular conditional probability formula tells to us. Okay, and we also understand the Bayes theorem statement. For the revision, I am going to put it again. Okay, let even E to En be the set of events associated with simple space. Okay, where even E2 to En have a non-zero probability of the occurrences and they form a partition of S. Again, understand, we are forming a partition of S. Well, let's assume this space is S. We need to form a partition. Okay, this space. This is a partition space. We are talking about this space. Okay. Then, if we consider a event associated with this space, then according to the Bayes theorem, probability of the event, condition probability of the come, event A come is probability of event any eth element k is equal to 1, 2, 3, 4, 9, then probability of the conditional A divided by kth element to 1 to n and kth value and probability of A divided by kth value. In this, we need to understand in the simplistic term, we use Bayes theorem, where this part, A condition B, A condition B is telling us that A is PA condition B is the probability of condition when A is occurring while event B has already occurred. We need to make sure what will the probability to A will come within the space. What we have, we have S space. And for this, we need to go for a formula that P A intersection B, what is found between A and B divided by operation of the probability P. So simple as that. If we have a two space within A and one space is B, and it is overall in a space S. Okay, understand it. We have a two space. This is space S, and in that we have a space A, and we have a space B. Now, we need to understand what will the probability of this space A will come. For this, we will use this conditional probability algorithm. Okay. For this, we need this part. This is the intersection part. So the formula what will give the probability of P event A occurring while B is already occurred will be, what will be the intersection of A and B? What is the common value? What is the common one between A and B? And which will be divided by the occurrence of the A and occurrence of the B.
occurrence of the probability of B. Then we get the rest of the value. Okay. In clear understanding, this is B. We need to understand where A will come. Maybe A will come here. 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 So that's why we need to understand about intersection. Okay. Okay. Maybe A will come here. Maybe A will come here. This is space. Again, this space is not like any sky space. We are in the analysis. We are dealing with some data. Some data space will be there. Some row column space will be there. In sub column, data will be there. So we need to understand if I have a pattern of the data B, then where the pattern of the A will come. We need to understand list like this. Okay. Now, how this theorem is derived, we need to understand. This theorem is derived like this. Occurrence of the A when the B is present, occurrence of the B when A is present, we know A is known, and B is not equal to 0, and A is not equal to 0. Then we will derive this formula like this. P intersection B intersection A barabar is equal to P probability of A intersection B. Then A intersection B will be the occurrence of the B occurrence to determine the occurrence of the A when B is known into occurrence of the B. Same as when B is known, then occurrence of if we need to determine the occurrence of the A, then we will multiply with the occurrence of the A. This is what a simple example is all about. Let's understand with some example. A bag contains 4 white ball. 1, 2, 3. 4 white ball and 6 black ball. Okay. And the bag contains 4 white ball and 6 black ball. Okay. The bag contained 4 white balls, 6 black ball, while another bag 2 will be 4 black ball and 6 white ball. One ball drawn at random from one bag. कोई भी एक ball निकाल ली गई. Find the probability that it was drawn from a bag 1. Probability ये find out करना है कि ये इस वाले bag से ही drawn हुआ है. Okay. अब देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले उन्होंने एक इवेंट लिया है कि भाई वो इवेंट रिस्पॉन्सिबल है उस बैग से इवेंट लेट इवन विद द इवेंट ऑफ चूजिंग द बैग एंड E2 विद द इवेंट ऑफ द चूजिंग द बैग. ओके. एंड A विद द इवेंट ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल. इन्होंने कहा कि 2 तरीके की बॉल मौजूद है, व्हाइट और ब्लैक. इवन इवेंट ये है कि भैया आपने बैग 1 से लिया है और E2 इवेंट ये कहता है आपने बैग 2 से लिया. इसमें से हमें एक बॉल निकालनी है एज पर क्वेश्चन और हमने अभी वो कहा है कि वो बॉल ब्लैक होगी. ओके. तो पहले इन्होंने क्या कहा देखिए यहां पे पहले उन्होंने कहा P इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आधी. किसी एक में से ही निकलेगा. 0.5 है. ठीक है. अकरेंस ऑफ ए मतलब क्या ब्लैक बॉल एक का ब्लैक बॉल निकालनी है तो ए वाले बैग में वो कितना है टोटल नंबर में 6 + 10. 6 + 4 = 10 और ब्लैक बॉल कितने हैं ए वाले में 6 तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है 3/5. ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी दूसरे बैग में कितना है? दूसरे बैग में कितना है? एक में 3 ब्लैक बॉल तो 3 ब्लैक बॉल प्लस टोटल 7 कितना हो गया 3/7. ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी कि भाई हम अगर
एक बैग से निकालते हैं, दूसरे बैग से निकालते हैं, तो एक से प्रोबेबिलिटी 3.5 है, दूसरे प्रोबेबिलिटी 3.7। ओके, अब इसको हम फॉर्मूले में डालें कि इवन से हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, इसमें हमको निकालना क्या है, ध्यान से सुनिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग 1। तो हम किसकी कंसिडरेशन कर रहे हैं, इवन इवेंट की। तो इवन इवेंट हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता चल चुका है कि हम ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ई इवन, ये हमको पता नहीं है, and probability of the a when we get a black ball from the first bag, then we divided by probability of black ball into probability of one black ball into a black ball available into the even bag plus probability of E2 and a black ball available in the second bag, E2 bag. Then what will is that, यहाँ पे हमने निकाला था कि E1 की प्रोबेबिलिटी और E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, तो यहाँ पे हो गया हाफ हाफ। और यहाँ पे हमने निकाला था कि A बाई E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5, A बाई E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/7। अब यहाँ भी E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, यहाँ पे A बाई E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट आता है 7/12। मतलब 7/12 इज द आंसर। कि कुछ दोनों बैग में से एक बैग अगर आप निकालते हैं और वो ब्लैक कलर का है, तो एक बैग से ही वो पहला, एक बैग से पहला, बैग 1 से ही वो ऑब्जेक्ट निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 7/12। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम कंडीशंस लगा रहते हैं और उसमें प्रोबेबिलिटी का निकालते हैं, उसमें हम अपनी बायस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, अब आइए, तो ये एक बेसिक एग्जांपल है। ठीक है, ये है एक ये इवन, ये भी डिस्कस हो गया, ये भी डिस्कस हो गया, ये भी डिस्कस हो गया। तो एक्चुअली में यही वाली प्रोबेबिलिटी को हमको निकालना है कि हमारे पास एक आंसर मौजूद है और कैसे हम बायसिंग एल्गोरिथम बनाएंगे हम अपने दूसरे रिजल्टेंट की वैल्यूएशन को समझने के लिए। नाउ अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हम एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस करना है अगर हमको, तो उसमें नैव बायस एल्गोरिथम से कैसे इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो जो नेव बायस एल्गोरिथम होता है, इज अ क्लासिफिकेशन algorithm based on the Bayes theorem, what we have discussed, in which we need to understand the conditional probability of the algorithm. Okay. ठीक है, ठीक है, अब देखिए बायस थ्योरम है, यूज ऑफ बोथ एक्सप्लोरेटरी एंड प्रेडिक्टिव। अब जो बायस थ्योरम है ये एक्सप्लोरेटरी मॉडल भी है और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग दोनों में जगह काम आता है, खासकर इस प्रोडक्ट में एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस सर्विस में। तो the word naive in the naive bias derived from the fact the algorithm uses Bayes technique but does not take into account the dependencies that may exist. ठीक है, अपने को डिपेंडेंसी से मतलब नहीं है, बायस थ्योरम का यूज करेंगे। The algorithm is less computational intense than the other Microsoft algorithm. Therefore, it is useful for quickly generating mining models to discover relationship between input columns and predicting columns. So, हमको, मैंने आपसे जैसे कहा था कि हमारे पास एक इनपुट कॉलम होगा, एक प्रेडिक्टिंग कॉलम होगा, तो उसके बारे में ही हमको पता लगाना है कैसे चीजें चलेंगी। अब ये एल्गोरिथम हमें इसको प्रेडिक्शन मॉडल में
exploration, you can use algorithm to do initial exploration of data, and then later you apply the result to create additional mining models and other algorithm that are computational intense and more accurate. हमको फ्यूचरिस्टिक पब्लिकेशन के लिए समझना है. अब इसको अगर हमको समझना चाहते हैं, बेसिकली डेटा कैसे हमको हेल्प करेगा और हमको मॉडलिंग कैसे हेल्प करेगी, उसको हमको देखना है थ्रू एन एग्जाम्पल. अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एक प्रमोशनल स्ट्रेटजी है. देयर इज ऑनगोइंग प्रमोशनल स्ट्रेटजी फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी नोन एज द एडवेंचर वर्क साइकिल. ओके, एंड we are target the potential customer by mailing out flyers, whatever flyers we have made for the product, whatever flyers we have mailed for the product. To reduce the cost, they want to send flyers only to customers who are likely to respond. ठीक, the company stores information in a database about demographics and responses to a previous mailing. They want to use this data to see how demographics such as age, location can help predict response to promotion by comparing potential customer to customers who have similar characteristics and who have purchased from the company in the past. Specifically, they want to see the difference between those customers who bought a bicycle and those customers who did not. अब इनको क्या है कि ये फाइल बनाए अपने प्रोडक्ट के लिए, ये चाहते हैं पुराने जो कस्टमर उनको भेजें और वो उसमें उन्होंने डेमोग्राफिक एनालिसिस कर रखी है भाई, एज और लोकेशन के हिसाब से, और पोटेंशियल कस्टमर को बनाना, पोटेंशियल कस्टमर को वो देखना चाहते हैं उनका रिस्पांस क्या है, उनका जो प्रोडक्ट है के फ्लायर पे. अब इसके बेसिस पे वो चाहते हैं कि उनका जो बाइसाइकिल है वो कस्टमर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा. अब यहाँ पे हम नेज बैस एल्गोरिथम को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में के डेटा सेट पे पुश करके हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर के प्रोफाइल ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है फॉर डिटर्मिनेशन. ओके, तो हम क्या करते हैं, हम एक वैसे तो बायस एल्गोरिथम पे बेस्ड एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट नेम बायस व्यूअर इन एसक्यूएल सर्वर डेटा टूल, और वहां से हम विजुअली इनपुट डेटा को डाल के इनपुट डेटा को जो रिक्वायर्ड इनपुट डेटा उसको पुश करके हम फाइनली अपने एल्गोरिथम्स के थ्रू एक एनालिसिस कर लेते हैं कि ये जो हमारा कस्टमर है वो हमारे लिए पोटेंशियल बायर है या नहीं है. तो हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं हर स्टेट के हर कॉलम से, और वहां से एक प्रेडिक्टेबल कॉलम बनाते हैं. और इसको अगर समझना है कि वो कैसे काम करता है, तो उससे समझिए उसकी एज क्या है. उसकी एज क्या है, 38 से 43, 29 से 34, 43 से 48. ठीक है, फिर आता है जी फिर आता है कि उसके एजुकेशन क्या है, बैचलर है, मार्शल शादी किया है नहीं किया है, कितनी कार रखा है, चिल्ड्रन कितने घर पे. अब वो कॉलम, ये जो कॉलम है उनके डेटा सेट से वही प्रेडिक्टेबल कॉलम बना रहा है ये मॉडल, और हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है थ्रू डिफरेंट कलर कोडिंग कि किस हिसाब का हमारे पास विद इन डिस्टेंस लोग मौजूद हैं. तो मार्केटिंग जो हमारा मार्केटिंग वाला है उस डेटा सेट को देख के और प्रोबेबिलिटी निकाल सकता है और नए प्रोसेस एल्गोरिथम को पुश करके. तो ये एक काम करने का तरीका है. ठीक है, ठीक. अब कैसे ये काम करेगा इसके लिए समझिए थोड़ा. ठीक है, उसके लिए हमको एक डिपेंडेंसी नेटवर्क बनानी पड़ेगी, एट्रीब्यूट की प्रोफाइल बनाना पड़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने के बाद डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा हर डेटा सेट. तो कैसे इसको हम नेव बैयस मॉडल को इंप्लीमेंट करते हैं
इसको देखिए, नेम बाइसेट मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक सिंगल की कॉलम बनाते हैं, ठीक है। कॉलम मतलब डेटाबेस का कॉलम है ये, कॉलम मतलब ये नहीं कि बस ऐसे कॉलम बना दिए कोई, नहीं उठाया और कॉलम ऐसे बना दिया ना। डेटाबेस में जो कॉलम है उसमें से एक सिंगल की या कई प्राइवेट की उठाते हैं, फिर इनपुट करते हैं कॉलम में नेम बायस मॉडल को, ठीक है। फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू डू डिस्क्रीट कॉलम्स, डिस्क्रिटाइजेशन मतलब क्या होता है कि डिपेंडेंसी क्रिएट करने की प्रॉपर्टी को कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अपने को वेरिएबल डिपेंडेंसी क्रिएट करने, और जो हमारा डिपेंडेंसी क्रिएशन का मॉडल है उसमें ऐसा रखना है मतलब कि उसमें जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो, और एक कॉलम हम प्रिडिक्शन का रख लेते हैं इसमें कि जिसमें हम जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं उससे रिजल्टेंट क्या है। फिर हमने मॉडल को यूज करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस सर्विस। फिर उसके थ्रू हम मॉडल बनाते हैं, जो हम मॉडल जो बना हुआ है पहले से माइक्रोसॉफ्ट नेम बाइसियन व्यूअर, उसको हम चीज़ों को समझते हैं और आगे काम करते हैं। फिर हम प्रिडिक्शन करते हैं कि थ्रू डेटा सेट जो अवेलेबल होता है उससे मॉडल को ट्रेन करके कि इस पैटर्न से कि हमारा जो कॉलम है जिसमें हमको प्रिडिक्शन देना है कि ये वो डेटा सेट है, इसको आप कॉल कर लीजिए, शायद वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हमारी कॉस्ट बहुत बचती है, ठीक है। और उसके लिए हम सपोर्टिव यूज माइनिंग के अलग टेक्निक्स का भी ले सकते हैं, कि जैसे प्रिडिक्टिव मॉडल मेकअप की जो टेक्निक्स है उसकी ये हमारे एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक तरीका है कि कैसे हमारा बाइसियन एल्गोरिथम काम करता है। मैंने उसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी बता दिया और कैसे एक सॉफ्टवेयर में बायसियन काम करता है डेटा माइनिंग की सर्विस में, यही कहिए कि डेटा माइनिंग जो डेटा एनालिसिस में सर्विस है उसकी जरूरत को मैनेज करने के लिए। उसके साइड सर्विसेज ये हैं कि भाई मेरिट की क्वेरी के एग्जांपल क्या है, तो उसकी क्वेरी के एग्जांपल आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे आप एग्जांपल बनाते हैं। इसके लिए आप जो क्वेरी बनाते हैं सेलेक्ट करते हैं मॉडल कैटलॉग को, मॉडल का नेम क्या है, डेट की डेट करते हैं, लास्ट प्रोसेसिंग देखते हैं, सर्विस नेम देखते हैं, प्रेडिक्शन की एंटिटी देखते हैं जो आप प्रेडिक्शन की है, फिर उसको फिल्टर करते हैं, सिस्टम को माइनिंग मॉडल लगाते हैं वे, और माइनिंग मॉडल का नाम क्या रखते हैं, नेम बायस फिल्टर। तो उस हिसाब से फिर मॉडल का कैटलॉग आ जाता है, मॉडल नेम आ जाता है, और फिर प्रोसेसिंग टाइम आ जाता है, सर्विस का नाम आ जाता है। फिर आप अपने डेटा सेट को ट्रेन करते हैं, जो डेटा सेट रखे रहते हैं, बाइक का बायर एट्रीब्यूट का जेंडर क्या है। फिर डेटा सेट को ट्रेन करने के बाद आप उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन को फिर और देखते भी हैं कि 10वां है। फिर देखने के बाद आप नोट का कैप्शन डालते हैं, कैप्शन डालने के बाद चीज़ों को स्टोर करते हैं, और फिर बायसियन मॉडल आपको प्रिडिक्शन करने में हेल्प करता है, सेलेक्ट करते हैं प्रिडिक्टिव और बायसियन क्वेरीज को। तो और यहाँ पे देखिए आप प्रिडिक्ट करते हैं क्वेरीज को, रिजल्ट आ जाता है, और इसी रिजल्ट बेसिस पे हमारा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो उसको कॉल करेगा कस्टमर को, और हमारे से वो कस्टमर शायद मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारा एज अ पॉसिबल बायर बन सकता है नेक्स्ट मॉडल का। तो ये ऐसे ही चलता रहता है, और इसके लिए हमारे साथ हमारे सॉफ्टवेयर बड़े सारे फंक्शन लिस्ट बना रखे हैं, प्रिडिक्ट सॉफ्टवेयर, प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी, प्रिडिक्ट सपोर्ट। तो ऐसे जो है बहुत मतलब जो एल्गोरिथम्स होते हैं, माइनिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर में यूज किए जाते हैं, और सॉफ्टवेयर में यूज होने के बाद हम उनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो चीज मैंने आपको बताई। ये तो एक माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट हो गया, लेकिन जब हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं, जब हम बायसियन एल्गोरिथम को बहुत आपके पाइथन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये तब, और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हम क्या चीज निकालना चाहते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा डेटा सेट क्या है। ठीक है, डेटा सेट के हिसाब से हम चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो नेव बायस एल्गोरिथम जो हमारा होता है, ये मशीन लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है कि कैसे हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी चीज़ के प्रिडिक्शन में। ओके, ओके, तो ये तो माइक्रोसॉफ्ट का एक एग्जांपल, आप ओरेकल में भी देख सकते हैं। ओरेकल हमारी एक कंपनी, आप जानते हो, ठीक है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल यूजेस भी दिखा दे रहा हूँ, जो जो थ्योरेटिकल चीजें होती हैं उनकी प्रैक्टिकल यूजेस भी दिखा देता हूँ कि भाई वो कैसे चलती हैं, ठीक है। और ये लिखने के लिए कैसे कैसे हम डेटा सेट को लिखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, उसको भी हम लोग देख लेंगे। बट और एक और प्रैक्टिकल यूजेस ओरेकल का भी एक एग्जांपल दे देते हैं कैसे वो चलता है। तो ये देखिए, प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग मॉडल्स हैं, इसमें नेव बायस है। तो हमने नेव बायस के बारे में पढ़ा। तो ये नेव बायस कैन भी, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो हमारे ओरेकल साहब हैं, कि बाइनरी और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम दोनों को सॉल्व करने में कहाँ होता है कि भाई इसमें मेनली हम जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रांजेक्शन पैटर्न्स कस्टमर का कैसा होता है, वो कैसे आप ट्रांजेक्शन पैटर्न कैसा होता है। तो इस वजह से हम अपनी फ्यूचरिस्टिक एक एनालिसिस कर पाते हैं कि हम कैसे किस हिसाब से कस्टमर से बात करें, ठीक है। तो ये वो काम है। और यही फॉर्मूला की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ऑकरिंग गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑकर्ड इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी ऑकरिंग गिवन दैट इवेंट ए हैज ऑकर्ड। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द event A occurring given that the B has occurred, probability of the event B given that the probability of the event A has occurred। तो ऐसे करके हम फॉर्मूलों को डिफाइन करते हैं और फाइनली हम उन चीजों को देखते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़े भी हैं। एक एक फुल फ्लेज्ड कैसे, मतलब ये तो ठीक है, हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा। एक फुल फ्लेज्ड कैसे हम bayesian को लिखेंगे, एक एल्गोरिथम को अपने को पुश कैसे करेंगे, उसको समझने के लिए हमको ये वाली जो टेक्स्ट है इसको समझना पड़ेगा कि कैसे हम जब एके2 में अगर कोई जब क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे। तो एके2 में पूछने के लिए हमें जो लिखना होगा वो ये लिखना होगा कि भाई नेव बेस्ड क्लासिफायर एल्गोरिथम क्या है। नेव बेस्ड क्लासिफायर एल्गोरिथम जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम व्हिच इज बेस्ड ऑन द बेस थ्योरम, जो हम लोग पढ़े हैं अभी, एंड यूज्ड फॉर द सॉल्विंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ये मेनली यूज होता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, जिसमें हाई डायमेंशन के ट्रेनिंग डेटा सेट होते हैं। और नेव बेस्ड क्लासिफायर जो होता है इफेक्टिव क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, जो बहुत तेजी से मशीन के मॉडल को बिल्ड करता है। इसके अंदर हम प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर्स का यूज करते हैं जिससे हम प्रिडिक्शंस कर पाते हैं। पॉपुलर एग्जांपल्स जो नेव बेस्ड एल्गोरिथम के हैं वो है स्पैम का फिल्ट्रेशन, सेंटिमेंटल एनालिसिस और क्लासिफाइंग आर्टिकल। ओके, फिर आता है व्हाट इज नेव। नेव बायस क्या होता है। नेव बायस के बारे में हमने बताया कि भाई हम जो है एक सर्टेन फीचर को इंडिपेंडेंट रखते हैं, और अगर और सारे फीचर्स अगर आ रहे हैं तो इसी को कहते हैं नेम। जैसे कि फ्रूट आइडेंटिफाई बेसिस ऑन द कलर शेप एंड टेस्ट, द रेड स्पेरिकल एंड स्वीट फ्रूट इज रिकॉग्नाइज्ड इन एन एप्पल। तो हर फीचर अपने आप इंडिविजुअली डिवाइडेड हो गया है, लेकिन फीचर को कनेक्ट करने के बाद हमको एक नया फ्रूट का नाम मिल जा रहा है। तो अब बेस क्यों कहते हैं, क्योंकि बेस जो है बेस थ्योरम का यूज करता है हमारे इस एल्गोरिथम में। ठीक है, बेस थ्योरम आपको बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द occurrence of A, probability of the occurrence of the A when B is already defined। तो उसके ये वाले फॉर्मूले यूज करते हैं कि probability of the occurrence of the B when the A is already defined, probability of the A and probability divided into probability into probability of A divided by probability of B। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस कहते हैं इसको। P occurrence of the A when the B is already defined, इसको है इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। when a probability hypothesis A on the observed event A B। observed event का मतलब ये कि ये चीज हो रखी है, और यहाँ पे probability hypothesis B when the A is already defined, probability of evidence given to the probability of hypothesis is true। और ये क्या PA को हम कहते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी और PB को कहते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी।
तो ये थोड़ा और स्पेसिफिक हम बात करते हैं मशीन लर्निंग में कि इस पे ए बी को कहते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस ए ऑन द ऑब्जर्व्ड इवेंट बी, और पी बी ए को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द एविडेंस गिवन विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस इज ट्रू। पी ए क्या है? प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस बिफोर ऑब्जर्विंग द एविडेंस। अब पी बी इज अ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द एविडेंस। कैसे वर्क करता है? तो हम सिंपल डेटा सेट लेते हैं कि क्या वेदर जो है सनी होगा, जिसे खिलाड़ी खरीद देख पाएंगे। तो हम 13 तारीख तक के डेटा सेट को देखते हैं, फिर देखते हैं कि भाई एस ओवरकास्ट कब है, रनिंग कब है, फिर टोटल देखते हैं, फिर लाइक्लीहुड वेदर कंडीशंस को निकालते हैं, फिर फाइनली उसमें नेव कंडीशनल एल्गोरिथम लगाते हैं। हमारे एल्गोरिथम के हिसाब से उस दिन में निकल के आ जाता है कि हाँ सनी डे रहेगा और प्लेयर खेल सकते हैं। नेव बेस्ड क्लासिफायर इसी तरीके से काम करता है। मैंने आपको बहुत बताया कि ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में बेसिकली काम आता है। नेव के साथ एक घाटा क्या है कि ये एज्यूम कर लेता है कि और फीचर आर इंडिपेंडेंट एंड अनरिलेटेड, तो हम एक दूसरे के रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश करके नहीं कर पाते। जैसे फ्रूट्स का कलर, शेप और साइज के हिसाब से आप फ्रूट बता रहे हैं, तो एक दूसरे का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में दिक्कत होती है। कहाँ पे प्रैक्टिकली ये यूज होता है? प्रैक्टिकली यूज होता है क्रेडिट स्कोरिंग में, मेडिकल डेटा क्लासिफिकेशन में, रियल टाइम प्रेडिक्शन में, स्पैम फिल्टरिंग और सेंटिमेंट एनालिसिस में। बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, गॉसियन, मल्टीनोमियल और बर्नौली। तो ये हमारे प्री प्रोसेसिंग कितने स्टेप्स में काम करता है। पहले डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है, फिर डेटा को ट्रेन करना पड़ता है, फिर प्रेडिक्ट करना पड़ता है, टेस्ट एक्यूरेसी देखते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। इस हिसाब से हम अपने डेटा सेट को देखते हैं और फाइनली हम अपना रिजल्टेंट को शो कर देते हैं। तो ये हमारा ग्राफ सेट आ जाता है जिसको हम दिखा देते हैं ऐसा होता है। तो ये हमारा है बायसियन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, नेव बेस क्लासिफायर एल्गोरिथम, जिसको हमने इस लेक्चर में पढ़ा और समझा। आई होप आपको समझ में